Hello and welcome to the Daily Hindu Analysis, which we have been doing since 25th of June. So people who are watching it for the first time, I would request you to please cover your backlog videos. Now, this is part of the free initiative series which Level Up is offering, wherein the newspaper sessions are taken from Monday to Friday. Now, what is expected out of you is that you would understand the article with me and then read the same article from the own. No? Now, how newspaper session becomes important for your examination. You are preparing for class. A second. If you are preparing for CLAT, the newspaper becomes important for the passages that you face in your section. Also, your GK portion is taken care of, and a lot of questions of the legal portion can also be answered by understanding the newspaper well. If we talk about CUET, the session becomes important because it is given directly the part of paper 3. Of paper 3 shall be taken care of. This paper is also popularly called as General Aptitude Test. Now, if you are of the 5-year management, yeah, interviews will play a crucial role. Now, your interviews shall revolve around you and the developments around you. Now, to understand the development happening around you, the newspaper becomes very essential. Long story short, the session is extremely useful for all those people who are looking beyond engineering and medicine as a career option, right? Chalo. So the first page says bills to oust arrested ministers trigger chaos. Now chalo, let us try to understand this article. Listen very carefully. In India, there is rule of law. So anything, if it is happening in India, or for that matter, any country where law is supreme, passing of law becomes essential. Now, how is a law made? When a bill, which can also be called as draft, is passed by both the houses, and is assented by the president, then we shall say that a bill has become an act. Now, if it is the central government, if it is happening at the central level, the Lok Sabha and the Rajya Sabha are the two houses, and the signing authority is the President of India. Now, if the same thing is happening at the state level, you have Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad, while the governor comes in the role of the assenting authority. चलो अंडरस्टूड. अब एक्ट पास करने के लिए हमारी पार्लियामेंट को मिलना पड़ेगा. पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी जैसे हमें पता है हमारे कंट्री में चल रहा है मॉनसून सेशन. अभी इसी मॉनसून सेशन में कल अमित शाह जी ने क्या किया, हु इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बिल पास कर दिया. इन्होंने एक बिल पास कराने की बात की. अब वो बिल इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि इट इज इन द हेडलाइंस टुडे. नाउ व्हाई इज द बिल सो कंट्रोवर्शियल? लेट अस अंडरस्टैंड. ये बिल ये बोलता है कि लेट्स से देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर और लेट्स से अ चीफ मिनिस्टर और फॉर दैट मैटर एनी मिनिस्टर, वेदर एट द सेंट्रल लेवल और एट द स्टेट लेवल, अगर ये तीनों में से ही कोई भी पोस्ट या पोजीशन पे इंसान बैठा हुआ है और उस पर कुछ चार्जेस लग जाते हैं. चार्जेस लग जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कन्विक्ट हो गया है. अभी तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा है, इसलिए ही इज एन सी, ही इज़ नॉट अ कन्विक्ट. इल्ज़ाम अभी कोर्ट ने नहीं बोला है कि यू आर रॉन्ग. अभी तो सिर्फ एलिगेशंस लगे हैं, चार्जेस लगे हैं. जब तक एलिगेशन और चार्जेस लगते हैं तब तक बोलते हैं अक्यूज्ड है. नाउ देयर आर मल्टीपल केसेस इन इंडिया जहाँ पे आपका अरेस्ट पॉसिबल है. अरेस्ट कब पॉसिबल है? दैट टू विदाउट गेटिंग कॉन्विक्ट. मतलब अभी आपको सज़ा हुई नहीं है बट आपका अरेस्ट हो चुका है. अब अमित शाह जी ने जो बिल लाया है वो बिल ये कह रहा है कि इफ़ योर अरेस्ट इज मोर देन 30 डेज, 30 से एक भी दिन ज़्यादा होगा अगर, लेट्स से फॉर दैट मैटर 1 डे, ऑटोमेटिकली 31st डे को
उस प्राइम मिनिस्टर को, उस चीफ मिनिस्टर को, या उस मिनिस्टर को हम मान लेंगे कि उसने रिजाइन कर दिया है या फिर ही हैज़ बीन रिमूव्ड। अब नाउ ऑपोजिशन स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑन दिस। ऑपोजिशन सेड, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड इतने इश्यूज आ रहे हैं विच आई बीन कवरिंग इन द पास्ट सेशंस, ऑपोजिशन ने बोला वैसे ही हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड एज ईडी। तो ऑपोजिशन कह रहा है द रूलिंग पार्टी विल मिस यूज द ईडी। हाउ विल इट मिस यूज द ईडी? ईडी इनमें से किसी पे भी, जो भी ऑपोजिशन पार्टी का लेट्स से मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर होगा, उस पर ईडी कुछ एलिगेशंस लगाएगा, प्रॉबेबली इन केसेस जहाँ पे 30 डेज का अरेस्ट पॉसिबल हो। और जैसे ही वो 30 डेज का अरेस्ट होगा वैसे ही हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे दैट द पीएम, सीएम और द मिनिस्टर हैज बीन रिमूव्ड। बट नाउ द क्वेश्चन इज टू मेक दिस बिल एन एक्ट। इस बिल को एक्ट बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। क्यों? इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने हैं। नॉर्मल चेंज करना होता तो वो ऑर्डिनरी बिल कहलाता, अगर कुछ टैक्सेस से चेंज करना होता तो वो फाइनेंस बिल कहलाता, है ना, या फिर मनी बिल कहलाता। बट नाउ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का स्ट्रेंथ चाहिए होता है विच इज़ वेरी ह्यूज एंड बीजेपी माइट नॉट हैव इट। ऑल्सो इफ सम फेडरल नेचर इज बीइंग चेंज, कोई ऐसा नेचर चेंज हो रहा है जहां हम स्टेट की पावर्स भी कम कर रहे हैं, तो वहां पे तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कराना ही है लोकसभा और राज्यसभा में। साइमल्टेनियसली वी हैव टू मेक श्योर कि 50% से ज़्यादा स्टेट्स में भी वो रेजोल्यूशन पास हो। अंडरस्टूड? सो नाउ दिस इज वाई ऑपोजिशन इज टारगेटिंग। अमित शाह जी ने रीज़न क्या दिया है? वो बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में मोरालिटी ख़त्म होती जा रही है। तो अगर कोई सीएम पीएम या मिनिस्टर है, अगर वो 30 दिन जेल में है तो उसका नैतिक दायित्व बनता है, इट इज़ हिज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिज़ाइन। तो ऑपोजिशन कह रहा है कि भाई ये तो अक्यूज है ना, कन्विक्ट नहीं हुआ है। अच्छा एक चीज़ और समझो, 2023 के केस की बात कर, 2013 का केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन, ये बोला कि इंडिया में जो एमपी और एमएलएज होते हैं, अगर इन पे कोई ऐसा एक्यूजेशन है, ऐसा इल्ज़ाम है जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, इफ़ दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एलिगेशन वेयर द पनिशमेंट इज़ फॉर 2 years, और वो एक्यूजेशन प्रूफ हो जाता है और वो भी देता है, तब वो एमपी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे सही बात यह है कि कन्विक्ट होने के बाद भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। यहाँ पे वो कन्विक्ट ही नहीं हुआ है, पीएम सीएम या मिनिस्टर जो भी है सेंटर या स्टेट का, वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, वो सिर्फ अक्यूज है और 30 डेज तक जेल में है। ऑटोमेटिकली 31st डे वो रिमूव्ड माना जाएगा। इस बिल को पास करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत टफ होगा ऑल्दो फॉर द रूलिंग पार्टी, बट इट इज़ इन न्यूज़, सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी स्टडी ऑल ऑफ दिस एंड हाउ ईडी विल बी यूज्ड। अंडरस्टूड? चलो, तो हमें ये न्यूज़ समझ में आ गई है। इफ यू हैव heard me for the last 5-7 odd minutes, you would be easily able to read and understand all of this. There might be few words which you might not understand, so please have a separate notebook wherein you are writing the words that you are not understanding. Chalo, so welcome to Water Day of 21st August 25. The first news is about India's moon landing mission. तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक लिखेंगे इंडिया एंड मून। पहले तो सिंपल समझो, मून पे जाने वाला पहला मैंड मिशन, मैंड मिशन मतलब इंसान गया था, फर्स्ट मैंड मिशन ऑन मून was by NASA. Now NASA is an American agency, American space agency, and the mission was mission Apollo. इंसान स्पेस में सबसे पहली बार कब गया था? यू विल लेट मी नो द ईयर, बट द कंट्री वाज यूएसएसआर, और यूएसएसआर ने सबसे पहले भेजा था यूरी गैगरिन को, और सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। और मिशन अपोलो में सबसे पहले गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके साथ में थे एडविन ऑल्ड्रिन। चलो, तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। इंडिया मून के लिए क्या कर रहा है जब दुनिया इतना कुछ कर रही है?
तो चंद्रयान मिशन तो हम पढ़ते ही रहते हैं। अभी कॉन्टेक्स्ट में हमारे है मिशन व्योम मित्र। मिशन व्योम मित्र। नाउ दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज इसरो, जो इंडिया का स्पेस आर्म है, विच हैज इट्स हेडक्वार्टर इन बैंगलोर। नाउ मिशन व्योम मित्र इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम 2026 में, हम मतलब इंडिया, पहली बार एक अनमैन्ड, अनमैन्ड मतलब देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ रोबोट, एक रोबोटिक मिशन भेज रहे हैं। कहाँ पे? मून पे। अब कल पार्लियामेंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस मिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई ईयर 2040 तक इंडिया मून पे एक मैंड मिशन भेज देगा। मैंड मिशन। चंद्रयान में मैन नहीं गया है, चंद्रयान में वी हैव ट्राइड टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मून। मिशन व्योममित्र इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द अनमैन्ड मून मिशन। देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ रोबोट, जब हम नेक्स्ट ईयर जो करने वाले हैं, हम मून पे जाएंगे, बट देयर वुड बी अ ह्यूमनॉइड। आप नेक्स्ट ईयर देखना न्यूज़ में। 2040 तक हम एक मून पे प्रॉपर इंडियन को भी भेज देंगे। ऑल्सो वी शुड रिमेंबर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में हम इंसान को, मतलब ह्यूमन को, लो अर्थ ऑर्बिट तक भेज देंगे। लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? ये आपका अर्थ है, लेट्स से ये आपका मून है ना? तो जब आप स्पेस जाते हो, देयर इज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एज कार्बन लाइन। कार्बन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने मान रखी है, विच इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स। हम अपने से 80 किलोमीटर ऊपर तक स्पेस नहीं मानते, एटमॉस्फेयर मानते हैं। 80 के ऊपर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेस का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। तो मिशन गगनयान से हम लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचेंगे। मिशन व्योममित्र से हम अनमैन्ड ह्यूमनॉइड मिशन भेजेंगे। मून तक जाएगा, बट एक ह्यूमनॉइड जाएगा व्योममित्र में। गगनयान मिशन में मून नहीं पहुंच रहे हैं, स्पेस के लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच रहे हैं। और 2040 तक हम मून पे इंसान भेजने की स्थिति में होंगे। नाउ देन, एक चीज आपने सुनी होगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जैसे ये अर्थ रिसर्च यू नीड टू स्टे देयर। जब आप स्पेस में रहेंगे तभी तो रिसर्च इज पॉसिबल ना। वापस आ जाएंगे, रिसर्च कैसे करेंगे? तो रिसर्च करने के लिए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम की चीज बनी हुई है, अभी बनी हुई है। इंडिया अपना बाय द नेम भारत अंतरिक्ष स्टेशन। भारत अंतरिक्ष स्टेशन विच विल बी लॉन्च बाय 2035। ये मोदी जी ने अभी बोला ही इंडिया गेट से। समझ में आ रहा है? तो ये सब हमें याद रखना चाहिए इंडिया एंड मून के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, एक कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन और ले लो। ये जो इंडिया का स्पेस आर्म है इसरो, ये इंडिया में स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है? टेल मी, इज इसरो डूइंग एनीथिंग टू इंक्रीज आवर स्पेस इकोनॉमी? देखो, स्पेस स्पेस इकोनॉमी क्या होता है? हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में स्पेस में बहुत सारा टूरिज्म वगैरह होगा, स्पेस में बहुत सारे हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पेस इकोनॉमी। तो इसरो ने एक कंपनी बना रखी है विच इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी विच इज कॉल्ड एज NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है? ये प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करती है ग्रो करने में, विच इज़ वर्किंग इन द स्पेस सेक्टर। देन देर इज अ कंपनी बाय द नेम इन स्पेस। इन स्पेस का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। अच्छा, NSIL इज ऑल्सो द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। मतलब मान लीजिए मैं कोई सैटेलाइट बनाता हूँ, अब मुझे लॉन्च कराना है, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च कराना है। अब मेरे पास लॉन्चिंग के पैसे नहीं है ना, हो सकता है मैं गुड साइंटिस्ट आई मेड दैट सैटेलाइट। तो ये लॉन्चिंग वाला मदद हमें कौन करता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, है ना? यू कैन ऑल्सो अप्लाई है। तो इसरो आपकी हेल्प करेगा। ये लॉन्चिंग कहाँ से होती है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सतीश धवन स्पेस स्पेस सतीश धवन स्पेस स्टेशन। स्पेस पे अभी तक का ही माना जाता है। अच्छा, एक रीज़न और है, ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग है ये ईस्ट से क्यों कर रहे हो? यहाँ से क्यों नहीं करते हम लॉन्चिंग? हम यहाँ से भी तो लॉन्चिंग कर सकते थे। देखो उसका रीज़न है, ये है अर्थ, ये है इक्वेटर। नॉर्थ पोल में हमेशा एक फोर्स लगती रहती है विच इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स, और ये राइट डायरेक्शन में लगती है, ये नेचर ही है, राइट डायरेक्शन में। और जब जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें कोरियोलिस फोर्स ऐसे लगती है, आपके लेफ्ट में लगती है। इधर देखो, लेफ्ट में लग रही है फोर्स, लेफ्ट में फोर्स लग रही है, इधर देखो राइट में फोर्स लग रही है ना? हवाएं इधर चलती हैं और इधर हवाएं इधर चलती हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स। नाउ दिस इज अ रूल कि भाई राइट में चलेगी किधर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और साउथ में चलेगी किधर? लेफ्ट में चलेगी किधर? सदर्न हेमिस्फेयर में। अब इंडिया आपका पूरा, जो आपका इंडिया है वो पूरा नदर्न हेमिस्फेयर में आता है।
तो मान लो मुझे कोई चीज़ लॉन्च करनी है ना, तो राइट साइड में फोर्स मिलेगा, लेफ्ट में नहीं मिल रहा है। हमें तो फोर्स किधर मिल रहा है, राइट में मिल रहा है, देखो ये ना फोर्स इधर लग रहा है। तो लॉन्चिंग इधर ही से पॉसिबल है, क्योंकि अगर इधर से लॉन्चिंग की, इस तरफ मान लीजिए भेजा, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, वो F1 वेक्टर फोर्स इधर लग रहा है, लॉन्चिंग तुम इधर दे रहे हो, तो जो जो आपका टोटल फोर्स होगा, क्यूमुलेटिव फोर्स होगा, वो बीच में आ जाएगा। रॉकेट को या सैटेलाइट को उतना थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। थ्रेशोल्ड कब मिलेगा कि जिधर वो फोर्स दे रहा है आप उसी फोर्स में फेंक दो उस चीज़ को, तो आपकी फोर्स डबल हो जाएगी। इसीलिए हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि भाई लॉन्चिंग तो इधर ही से होगी, इधर लॉन्चिंग नहीं होगी। अब दूसरा सवाल, लॉन्चिंग इधर से भी पॉसिबल थी, इधर से भी पॉसिबल थी, डायरेक्शन यही रखना है, ये डायरेक्शन नहीं रख सकते। ठीक, अब हमने ईस्टर्न कोस्ट क्यों चुना और वेस्टर्न कोस्ट क्यों नहीं, क्योंकि अगर इधर से लॉन्चिंग करते और मान लीजिए सैटेलाइट या फिर मिसाइल किसी दिन फेल हो जाती, तो वो गिरती कहाँ, मेनलैंड इंडिया में, और सिविलियंस पे प्रॉब्लम आती। बट अगर हमने इधर से लॉन्चिंग की और मान लीजिए कोई कोई फेलियर होता भी है, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, तो डिस्ट्रक्शन कम होगा। दैट इज़ वाई हमारा लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा स्पेस, सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड है। चलो, अब इस पे आ जाते हैं, आदि कर्म योगी अभियान। ये क्या है आदि कर्म योगी अभियान? पहले तो एक चीज़ समझ लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। दिस इज एन स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वो मिनिस्ट्री जो ट्राइब्स के बारे में बात करेगी। एक चीज़ याद रखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स मिलती है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा ट्राइबल रिजर्वेशन इन लोकसभा इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, है ना। तो अब हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं जो ट्राइब्स हैं, इनके अंदर जो लीडरशिप पैदा हो रही है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप इनके बच्चों में आ रही है, वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर जो है वो लेयर्स में बटी हो, एसओपीज हो, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सबके पास अपनी अथॉरिटीज हो। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप और पावर। तो हम ये चाहते हैं हम अपने ट्राइबल बच्चों को ये चीज़ सिखा सकें, हम उनको निष्काम कर्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव करा सकें। नाउ व्हाट इज निष्काम कर्मा? निष्काम कर्मा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महाभारत। निष्काम कर्मा का कॉन्सेप्ट कहता है टू डू योर एंड डोंट थिंक अबाउट द फ्रूट। नेकी कर दरिया में डाल, आप बस अपना काम करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए, रिजल्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द नेचर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निष्काम कर्मा। ये निष्काम कर्मा वाज यूज्ड बाय कृष्णा जी टू गाइड अर्जुन, है ना। तो आदि कर्म योगी अभियान, द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट दिस इज एन इनिशिएटिव फॉर द ट्राइबल पीपल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, नथिंग मोर नथिंग लेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ नाउ। अगली न्यूज़ है केरला टू बी डिक्लेयर्ड फुल्ली डिजिटली लिटरेट। अब ये एक चीज़ समझो जल्दी से, इंडिया में यहाँ पे एक स्टेट है केरला नाम का। द कैपिटल ऑफ केरला इज थिरुवनंतपुरम। केरला इज कॉल्ड एज गॉड्स ओन कंट्री, राइट। ऑल्सो दिस कोस्ट, द केरला कोस्ट इज कॉल्ड एज द मालाबार कोस्ट, द मालाबार कोस्ट, है ना। चलो, ईस्टर्न घाट्स वगैरह हैं, बहुत कुछ है, वील डिस्कस डिस्कस इट समडे। अब एक चीज़ याद रखो यार, केरला में ना, अच्छा केरला इज ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस, स्पाइसेस में केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। दूसरा हमें याद रखना है ना, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज, केरला में ना हमेशा से एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, नॉट जस्ट आफ्टर ब्रिटिशर्स बट प्रायर टू ब्रिटिशर्स ऑल्सो। एवर सिंस योर 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी मतलब 1700 के बाद, 1700 के बाद से ही हमारे पास हमें 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 हिस्ट्री बताती है कि केरला में एजुकेशन वॉज यूज्ड एज अ टूल ऑफ पावर्टी एलिविएशन। मतलब एजुकेशन एक हथियार था गरीबी से निकलने का, पावर्टी से एलिविएट होने का तरीका था एजुकेशन, विच वॉज नोन टू द केरला पीपल सिंस द 17th 18th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। इसी को देखते हुए हमने एक चीज़ पाई कि 1991 में केरला इंडिया का पहला स्टेट बना विच वॉज 100% लिटरेट। अब उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए आज मतलब 21 अगस्त 2025 को केरला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है विच हैज़ ऑल्सो बिकम इंडियाज फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट। तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा व्हाट इज डिजिटली लिटरेट? डिजिटली लिटरेट का मतलब होता है उनके पास कॉग्निटिव स्किल्स भी होनी चाहिए,
and they should also have some technical skills. Technical skills like basic system समझना, basic interface समझना, operating systems को समझना, as to understand why mobile, why computers, है ना, how they are operated, so operating systems. Now cognitive abilities will include decision making, कि उनकी critical reasoning कैसी है, वो decisions कैसे बनाते हैं. अगर उनके पास ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इट इज़ कॉल्ड एज अ डिजिटल लिटरेट स्टेट. अभी थिरुवनंतपुरम वहाँ का कैपिटल है. थिरुवनंतपुरम की एक पंचायत है, उस पंचायत से लाइक अ स्मॉल विलेज, वहाँ पे एक 2021 में कैंपेन लॉन्च किया गया डीजी केरला, और उन्होंने कोशिश किया उस पंचायत को डिजिटली लिटरेट करने का, और मिशन सक्सेसफुल हो गया. इसी को देखते हुए स्टेट ने बोला कि इसी प्रोजेक्ट को भाई आप पूरे स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट कर दो, ये पूरे केरला में इंप्लीमेंट कर दो. और आज हम देखते हैं 2021 से 2025 में कि केरला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है विच हैज़ नाउ बिकम फुल्ली डिजिटली लिटरेट. अंडरस्टूड? समझ में आया? चलिए, इसके आगे पीछे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ मेड इन इंडिया लेबल स्कीम. नाउ व्हाट इज़ मेड इन इंडिया लेबल स्कीम? देखिए, 2014 में मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की विच वॉज अ फ्लैगशिप स्कीम. फ्लैगशिप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ मोदी जी ने लॉन्च किया, विच वॉज कॉल्ड एज मेक इन इंडिया. जिसमें मोदी जी ने बोला कि वो देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता, विच मीन्स ही विल मेक डूइंग बिजनेस इन इंडिया वेरी सिंपल. टैक्स कंप्लायंसेस कम कर देंगे, अप्रूवल्स कम कर देंगे, बिजनेस करना ईजी करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे देश में. साथ में ही इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे. हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो वो सेविंग्स बढ़ेंगी या फिर वो डिमांड करेंगे. अगर वो डिमांड करेंगे उसी पैसे से तो फैक्ट्री देख के प्रोडक्शन बढ़ा देगी, सेविंग करेंगे तो लोगों को ज़्यादा लोन्स मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में. ये मोदी जी का मिशन था विच इज़ ऑलमोस्ट फेलिंग. नाउ इन 2025 इसी मिशन को देखते हुए इंडिया ने अपना मेड इन इंडिया ब्रांड लॉन्च किया है. मेड इन इंडिया लेबल्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि भाई एक्सपोर्टर्स, भाई प्रोड्यूसर्स, भाई मैन्युफैक्चरर्स, आओ हम तुमको एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन देंगे, अगर तुम आओगे तो दे देंगे, और इसमें हम तुम्हें मेड इन इंडिया लेबल्स को प्रमोट करने के लिए बोलेंगे. जिससे क्या होगा, सो दैट इंडिया अमंग द वर्ल्ड एज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग हब. होना जाना इससे कुछ नहीं है, बस लॉन्च हुआ है तो आप समझ लीजिए. अच्छा, इसको लॉन्च, ये मेड इन इंडिया लेबल्स को लॉन्च करना और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम, मतलब नोडल एजेंसी कौन है, इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कौन कर रहा है. तो द नोडल एजेंसी फॉर दिस मेड इन इंडिया लेबल स्कीम इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल trade, which is also called as DPIIT and works under the Ministry of Commerce, and Mr. Piyush Goyal is the Minister of Commerce. So that is it for today. I hope you had good time watching this session and this would be useful for your examinations. If you are liking these videos, please share it to the people who might require this. Also, if you are looking for a full-fledged course to prepare for the CLAT, CUT or IPMAT 26 and the 27 attempt, feel free to call us on the number which is given in the description. Also, you can take this number from here, which is 880-8888-415. For now, thank you so much. Hopefully I'll see you tomorrow now. Chalo, thank you, bye.